We welcome everyone who's joining us every week. हम सभी का स्वागत करते हैं जो हर सप्ताह हमारे साथ जुड़े जाते हैं इस मीटिंग में। And if you're joining us for the first time or after a long time, please write a comment on the comment section. और जो पहले बार या फिर कुछ सप्ताह या फिर महीने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और बताइए हमें। We would like to keep you in our prayers and encourage you to continue to join with us. हम हमारे प्रार्थना में और हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आगे से हमारे साथ जुड़े रहे प्रार्थना में और संगति में। We are right now focusing on married couples. हम पिछले कई सप्ताहों से शादीशुदा वैवाहिक जीवन के बारे में, पति पत्नियों के बारे में मनन और ध्यान करते हुए आ रहे। We started off by focusing on not only on men but also on women by separately to see what their mindset needs to be before they get married. हम ना कि सिर्फ पुरुषों के बारे में लेकिन पुरुष और स्त्री के बारे में और खास करके दोनों के लिए जो शादी करने के पहले क्या एक दूसरे के प्रति परमेश्वर इच्छा रखता है उनके जीवन के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। And we've been looking at different things that God has been digging deep into the heart of each person. और हम ऐसा सीखते और देखते आ रहे हैं कि हृदय की Are you there? I think your voice is gone. Hello? Yes, you're there? Okay, praise the Lord. Yes. Okay, amen. Okay. We thank God. So we are focusing on this whole idea of what a marriage is and what God has spoken about the marriage. हम इस सोच के ऊपर ध्यान बटा रहे हैं कि क्या शादी है और क्या मसीह में एक शादीशुदा वैवाहिक जीवन होना चाहिए। And we did this on purpose because we explained from the very beginning that the union between a man and a wife in marriage is something that God uses as an example of the church and Jesus Christ. हमने शुरुआत में भी कहा एक शादीशुदा वैवाहिक जीवन या फिर एक पति पत्नी का जीवन एक कलीसिया और मसीह के संबंध के बीच में बताया जाता है वचन के आधार पर। And that's why Satan actually is attacking all the marriages constantly worldwide inside the church and outside the church. इसके लिए दुनिया भर में हर एक वैवाहिक जीवन कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर शैतान उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करते हुए आ रहा है। Because if your marriage is not working right, your relationship with Christ will also not be working right. यदि आपका शादीशुदा जीवन सही रीति से नहीं बीत रहा है, तो आपका परमेश्वर के साथ का संबंध भी सही रीति से नहीं चल रहा। Because Jesus Christ represents the husband or the one who is going to get married, and the woman represents the church, which is the body of Jesus Christ. पुरुष मसीह और स्त्री कलीसिया को दर्शाती है या फिर परमेश्वर के शरीर को दर्शाती है। And right now we are living in a time where there is a preparation where the groom is preparing the bride to become perfect so they can be joined as one when Christ returns. हम उस समय में जीवन बिताते हुए आ रहे हैं जिस सदी में दूल्हा अपनी दुल्हन को उस शादी के लिए, उस नियोते के लिए, उस संगमम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। And the one point that God made it very clear to me was that until we don't understand the gift that is given to man, which is the woman as a gift, the marriage cannot work. एक बात जो वचन में ये भाग पढ़ते और सिखाते हुए मुझे समझ में आ रहा है, वो तोहफा जो हमारी पत्नी है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जब तक हम उसे समझ और उपयोग नहीं कर पाए,
तब तक हमारा आत्मिक जीवन भी आगे या फिर वैवाहिक जीवन भी आगे नहीं बढ़ सकता। So that is why I am focusing very strongly on this whole idea of men understanding who the women are in their lives and what gifts God has given to them. इसके लिए मैं इस भाग पर ध्यान बटाते हुए आ रहा हूँ कि स्त्रियां कैसी एक तोहफा या फिर एक सम्मान है परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर ने दिया है एक वैवाहिक जीवन में और एक पुरुष के लिए। And at the same time, I'm letting the men understand that they have the authority and the power to change their marriage situation if they only return back to God. उसी समय पुरुषों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पर आपका वैवाहिक जीवन तभी बदल सकता है या फिर सुधर सकता है जब आप मुड़कर परमेश्वर की ओर आकर अपने हृदय को सुधारो, परिवर्तन करो। See, the first condition in order for a man to get married is that he is someone that is constantly in God's presence. पहली व्यवस्था जो इस वैवाहिक जीवन में होना चाहिए कि पुरुष निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे मन के साथ रहना चाहिए। Now, once you get married, if that changes, then the purpose of the marriage also changes. जब आपकी शादी हो जाती है और आपका उद्देश्य बदल जाता है, तो आपके वैवाहिक जीवन का भी उद्देश्य बदल जाता है। See, many men, once they get married, they become people who throw onto their wives the whole concept of holiness and leading the family forward into God's word. शादी ऐसा हो जाता है कि पुरुष पूरा जवाबदारी, उत्तरदायित्व, आत्मिक कार्य, बढ़ोतरी अपने पत्नी या फिर स्त्री के ऊपर लाद देती है कि सिर्फ उनकी जिम्मा है ये सब आगे बढ़ाने के लिए। See, the husband is the priest of the house. लेकिन एक पति एक पुरोहित है उसके घराने का। The woman is the one who's going to help you with your calling as a priest for your house. स्त्री या फिर पत्नी उस पुरोहित की सहायक या फिर मदद करने वाली एक पात्र है उनके वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। And as we are focusing on Proverbs chapter 31, और जैसे हम पढ़ते हुए सीखते हुए नीति वचन 31 में देखते हुए आ रहे हैं, we are seeing that God has spoken in the Bible that the woman has many qualities in the natural. और हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उस वचन के आधार पर प्राकृतिक दृष्टि में और दुनिया में स्त्रियों के अंदर कई गुण हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं उन्हें। Yes, the husband is supposed to be the one that makes the initial or the greatest part of the income and provides for his family. हाँ, पति का मूल या फिर मुख्य अधिकार होता है या फिर उत्तरदायित्व होता है आमदनी करवाना, घर पे पैसा लाना। But everything else, according to what I am reading, is supposed to be the responsibility of the wife. और बाकी सब उत्तरदायित्व जिससे मैं पढ़ते और सिखाते हुए आ रहा हूँ वो सब पत्नी या फिर स्त्री का। So the husband is supposed to be the one who provides financially. और पति प्रबंधक है उसके घराने के लिए या फिर उसके परिवार के लिए। And is the priest of the house. और अपने घर का पुरोहित है वो। But the wife has all the tools to make sure that every other area of life and family works together on its own. और पत्नी उस उपकरण है जो उस घराने को, उस घर को चलाने के लिए जो भी चीजें चाहिए परमेश्वर ने उन्हें दी है। And some of the things we have seen so far in Proverbs 31 is that the woman is considered priceless and trustworthy by the husband. और अब तक हमने जो सीखते हुए आए हैं, स्त्री बहुमूल्य है और पति उसे अपना एक सहायक और मददगार के तौर पर देखता है। We read also that all her decisions always benefit her husband. और उसका जो भी पत्नी का जो भी निर्णय है और उद्देश्य है वो अपने पति के साथ मेल खाता है, मिलजुल कर जाता है। Her words and actions only bring good.
उसके शब्द या फिर उसके क्रियाएं सिर्फ अच्छी और भलाई चीजों को ही लाता है। She is hardworking and creates with her hands. और वो मेहनत करने वाली है और अपने चीजों को अपने हाथों से बनाती है। And she is a good consumer and she always seeks the best prices. और वो अच्छी एक पुण्यदायक व्यक्ति है और हमेशा अच्छी चीजों को अपने हाथों से कार्य में लाती है। She is an early riser and she's a good manager of her time. वो सवेरे उठती है और अपने समय का सही रीति से उपयोग में लाती है। She is financially wise and she can run multiple businesses at one time. वो सांपत्तिक तौर में बुद्धिमती है और कई चीजों को एक ही समय पे उसका कार्य कर सकती है। She is always confident about her success in business. वो हमेशा पूर्ण रीति से आत्मविश्वास से भरी है अपने कारोबार के और व्यापार के बारे में। She is financially independent. सांपत्तिक तौर पे अपने आप से वो परिपूर्ण है। Now, these are some of the things that we are studying, and there's many more we're going to look into. But just think what the Lord is saying here. He's saying that the wife is very, very talented in the natural. ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, परंतु वचन के आधार पर परमेश्वर की दृष्टिकोण से एक पत्नी बहुत सहायक और बहुत ही गुणों से भरी हुई व्यक्ति है। You see, in none of these will you see that she spends 4 hours a day praying. और इसमें कहीं भी हम ऐसा नहीं देखते कि वो दिन के 4 घंटे प्रार्थना में बिताती है सिर्फ। In none of these you will see that she spends a whole week fasting. और कहीं भी हम ऐसा नहीं देखते कि एक सप्ताह भर पूरा उपवास करती है। Now, I'm not saying that spending time in fasting as a wife for your husband and your family, or spending 3-4 hours a day praying for your husband and your family is wrong. I'm not saying that. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अपने परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, घराने के लिए उपवास ना करे या फिर 3-4 घंटे प्रार्थना ना करे, मैं ऐसा नहीं बता रहा। But what I'm saying is that your calling as a woman is to be someone who is supernatural in natural work. एक स्त्री होने के तौर पर, आत्मिक तौर पर एक अप्राकृतिक व्यक्ति होकर प्राकृतिक दृष्टि में कार्य करना चाहिए। See, this list, the more I read it, the more I deep down dig into it, the more I see how God has made the woman in such a special way that men cannot do what women can do. एक गुणों का विवरण बताते हुए, इसे सीखते हुए, समझते हुए परमेश्वर ने मुझे ये बताया या फिर समझाया है, इसमें से कई चीजें ऐसे हैं कि पुरुष नहीं कर सकते, सिर्फ स्त्रियां ही कर सकती है वो सब। And the woman is made in such a way that she can do all these things every day at the same time. और स्त्रियों को इस प्रकार सजाया गया है कि वो हर चीजें, हर प्रकार के कार्यों को हर रोज, हर दिन कर सकती है। Men are basically made for one thing. पुरुष सिर्फ एक समय पर एक कार्य कर सकते हैं। And that one thing that they can do at one time is basically to lead the family into the presence of God. वो एक कार्य एक समय में जो कर सकते हैं, सरल रीति से बोले तो परिवार को सही मार्ग पर, आगे दिशा पर लेकर जाना। They are the priests of the house, the ones who carry the responsibility for the family. वो अपने घर के पुरोहित है, याजक है और उत्तरदायित्व को लेकर चलने वाले एक उत्तरदारी व्यक्ति है। So they have to feed their family physically and spiritually. उसके लिए वो प्रबंधक है, आत्मिक तौर पर और मानसिक तौर पर और प्राकृतिक तौर पर। They are the ones who have to decide the future of the family. उनको अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना है, निर्णय लेना है। And that is why they are the ones, the men are the ones who have to spend those hours in prayer and fasting. इसके लिए पुरुष है
जिनको प्रार्थना और उपवास में अपने समय को बिताना है। But men have become too involved in basically making money, लेकिन पुरुष इतने घुल मिल गए हैं पैसे कमाने के उद्देश्य में, and that it becomes their pride. और कि वो इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो उनका घमंड बन जाता है या फिर अहंकार बन जाता है। The more money they make, the more they succeed in life, the more they oppress their family and their wives. ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा पैसा लाए तो अपनी पत्नी के ऊपर वो जवाबदारी या फिर उत्तरदायित्व का हक जता सके। And guess what? The one way God humbles every single husband, do you know how it is? और सोचिए, एक रीति या फिर एक मार्ग से हर पुरुष को या फिर हर पति को परमेश्वर दीन करवाता है। क्या आपको पता है वो कैसा है? I have seen it in every single situation where the husband needs to be humbled by God. God always uses this one strategy. और हर एक स्थिति में, व्यक्तियों के और पारिवारिक जीवन में, पुरुषों को परमेश्वर इस योजना के साथ उन्हें दीन करवाता है। He makes the husband someone who can no longer provide for his family. वो उसे ऐसा बना देता है कि वो अपने परिवार को प्रबंध नहीं कर पाता। He makes the husband depend on the wife. सरल शब्दों में, पति अपने पत्नी के ऊपर निर्भरी हो जाता है। Now, I've seen this not only with husbands losing their jobs or not be able to provide financially. I've also seen it with husbands becoming sick to the point where they have to depend on their wives. ये सिर्फ सांपत्तिक तौर पर नहीं होता, लेकिन पतियां उस तौर पर, पुरुष उस तौर पर पहुंच जाते हैं कि उनको बीमारियां या फिर शारीरिक क्लेशों के वजह से पूर्ण रीति से अपने पत्नियों पर निर्भर हो जाते हैं। So if you want to get healed from that sickness of yours, or you want to recover the ability to provide for your family, you have to get back to God. इसीलिए उस अवस्था में से, परिस्थितियों में से बदलाव लाना है तो आपको मुड़कर अपने मन को बदलाव लाकर परमेश्वर की ओर लौटना है अपने आप। Once you return to God and take your place as the priest of the house, God will make sure you are healthy and make sure you can provide for your family. एक बार आप मन फिराकर परमेश्वर की ओर आओ तो परमेश्वर इसे ध्यान में लाएगा कि आप तंदुरुस्त हो और आप कमा सकते हो और आप परिवार को प्रबंधक कर सकते हो। So let's go now into the topic, which is Proverbs chapter 31. उस अध्याय में या फिर उस विषय में जाएंगे जो है कि नीति वचन 31वां अध्याय। And we have read verse 1 till we read verse 10 to verse 15 so far, I believe, 16. मैं विश्वास रखता हूं कि अब तक हमने 10 से लेकर 16वां वाक्य तक पढ़ा है। So let's read those again. I'll read them one by one. I'll read till verse 16. 10 to 16. एक और बार पढ़ेंगे 10 से लेकर 31, नीति वचन 31 के 10 से लेकर 16वां वाक्य तक एक एक वाक्य को हम पढ़ेंगे। I'll read them all at once, okay? एक साथ सब वाक्यों को पढ़ेंगे। Who can find a capable wife? Her value far exceeds the finest jewels. Her husband has full confidence in her. As a result, he lacks nothing of value. She will bring good to him, never evil, every day of her life. She seeks out wool and flax, working with eager hands. She is like a sea-going ship that brings her food from far away. She rises while it is still night, preparing meals for her family and providing for her women servants. She evaluates a field and purchases it from the proceeds. She plants a vineyard. भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है।
उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे भली लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यापार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के सामान अपने भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और वह अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। Now, verse 16, 16, 18, and 24, all three of these go together. 31 का 16, 18 और 24वां वाक्य एक साथ जाते हैं। So let me highlight those over here. Verse 16. मैं स्क्रीन पर उसे हाईलाइट करना चाहता हूं। 16वां वाक्य, verse 16, verse 18, and verse 16वां वाक्य, 24. 16वां वाक्य, 18वां वाक्य और 24वां वाक्य। And let me read those three together right now. मैं उस सभी को साथ में पढ़ना चाहता हूं, तीनों वाक्यों को। Says she evaluates a field and purchases it. From the proceeds, she plants a vineyard. She is confident that her profits are sufficient. Her lamp does not go out at night. She designs and sells linen garments, supplying accessories to clothiers. वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। Now, these three verses, when we read them, what comes to mind as an amazing quality that God has made for women? ये तीन वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं तो वो अचंभित करने वाले गुणों को जो स्त्रियों में परमेश्वर ने दिया है उसके बारे में हमें समझ में आता है। See, he's talking about someone who can purchase a land and invest in that land. यहाँ बताया गया है कि एक जमीन की व्यापार करती है और उस जमीन में वो अपना पूरा समय और पैसा बिताती है लाभ के लिए। And from that profit, she starts another business. और उस लाभ में से एक नया व्यापार शुरू करती है। That she is confident that what she is working with is going to bring profit. वो खुद में सहमित और विश्वासित है कि वो जो भी करे उसमें लाभ आएगा और वो वैसा करती है। And then she creates things with her own hands and sells it to people. वो अपने हाथों से कार्य और चीजें बनाती है और वो उसे बेचती है। Now, if you're a woman, God is saying this is what you are supposed to do. और यदि आप एक स्त्री है तो परमेश्वर कहता है कि यही आपको करना चाहिए। Not only that, if God has said that you are to do it, that means you can do it. यदि परमेश्वर चाहता है और कहता है उसका मतलब आपको करना है। You see, sometimes we think that God is someone that is cruel or is playing a joke on us. कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत निष्ठुर और कठोर है और हमारे साथ मजाक कर रहा है। We think he is someone that is going to tell us, bring me that glass of water when you have no hands. सरल के तौर पर शायद परमेश्वर हमें ऐसा लगता होगा जो कहता है उस पानी के ग्लास को मेरे पास लेकर आओ जबकि मेरे पास हाथ ही नहीं है। See, God is not that cruel.
परमेश्वर उसने निष्ठुर या फिर निर्दयी नहीं। See, when God says this is what you are supposed to do, this is what you will do, is because it is going to happen once you start doing it. यदि परमेश्वर चाहता है कि आप ये करें और कहता है कि तुम ये करो, तो परमेश्वर का उद्देश्य और कार्य ये है कि आप उसे करें। And if you cannot do it, the moment you surrender to Him, He will do it through you. यदि आप इसे नहीं कर पाते हो, तो उस क्षण जब आप अपने आप को समर्पण करोगे, वो आपके द्वारा उस कार्य की पूर्ति और प्राप्ति करेगा। So let me ask you, ladies, why are you not doing this? तो मैं स्त्रियों से पूछना चाहता हूँ कि आप ये क्यों नहीं कर रहे? Most of you, I guarantee most of you will say, well, my husband will not allow me, my husband will not like it. मैं वायदे के साथ कह सकता हूँ, अधिक से लोग कहेंगे कि मेरा पति मुझे ये करने नहीं दे रहा। Or you will say, well, I'm afraid of failing and losing all the hard money that my husband has made. या फिर आप कहोगे कि मेरे पति का मेहनत का पैसा मैं निराश या फिर हार जाऊंगी, इसमें मैं लगाना नहीं चाहती इसलिए। Or you will say, well, what if I invest what I have saved and then I lose it all and I have nothing left for the future of my children? क्या मैं उस पैसा इस व्यापार में, कारोबार में लगा दूं, और क्या कल को मेरे बच्चों के लिए इस पैसे नहीं है, उनके भविष्य के लिए पैसे नहीं? If you're thinking all these things, means you are not reading God's word. यदि आप ऐसा सोच रहे हो, उसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे। You are hearing the voice of your failures. आप अपने निराशा या फिर हार की वाणियों को सुन रहे हो। Or you may be even, I'm blaming the husband now. The husband is not putting the confidence in you for you to do these things. या फिर आप अपने पति के ऊपर दोष लगा रहे हो कि उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं है इस कार्यों को करने के लिए। And husbands, you need to make sure that you believe what the word says about your wife. और पतियों को ये ध्यान में रखना है और इसे करना है कि आप विश्वास करें कि वचन आपके पत्नी के बारे में, स्त्रियों के बारे में क्या कहता है। See, the money you have made as a man is been made to you by God. एक पुरुष के प्रति जो पैसा आपने कमाया है, वो पैसा परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दिया। It is for you to use wisely for your family. ये आपको दिया गया है ताकि आप बुद्धि के साथ अपने परिवार के लिए उपयोग में लाए। And if the word of God says that your wife can invest wisely, you have to trust this word. और वचन यदि ऐसा कहता है कि तुम्हारी पत्नी बुद्धि के साथ इसमें लाभ ला सकती है या फिर कारोबार व्यापार में लगा सकती है, तो उसे करना चाहिए। And women, you have to stop thinking that the money you have, if you lose it, it's the end of the world. और स्त्रियों को ऐसे सोचना चाहिए कि यदि मैं ये पैसा लगा दूं और वही दुनिया का अंत होगा या फिर मेरे जीवन का अंत होगा। And you have to stop worrying about what your husband will say if you invest in the wrong way. और या फिर आपको ऐसा सोचना बंद करना होगा, बदलना होगा कि पति क्या कहेंगे, दुनिया क्या करेगी यदि मैं उसमें गलत तरीके से लगा दूं। One thing I have seen in many couples is they say, this is my money, this is my investment, this is my heritage. एक चीज मैंने जो पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच देखा है, मेरा पैसा, मेरा कारोबार, मेरी संपत्ति, मेरी पुष्टि। You see, everything you have is for the family. जो कुछ भी आपका है, यदि आप पारिवारिक जीवन बिताते हो तो आपका परिवार का है, पति पत्नी का साथ में। You both have to decide how to work out the finances of your family. आपको आपस में बात कर कर ये समझौते पर आना है
कि आपस का पैसा कैसे साथ में उसे हम बताएं और कैसे खर्चे। Now, yes, the husband is the one who should make always the final decision. हाँ, पति के ऊपर ही वो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, But he should not make this decision based on fear of the future or based on what he thinks, but it has to be based on what the Lord is showing him because he is walking with God. लेकिन पुरुष हो या फिर पति है, वो निर्णय आपको इस तौर पर डर के साथ, भय के साथ नहीं लेना है, कल क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, आपको उस आधार पर लेना है कि परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है और उस परमेश्वर से योजना प्राप्त कर कर आपको कार्य करना है। And in these verses, we are seeing that the woman has been given the ability, a supernatural ability to actually make good money for the family. इस वचनों के आधार पर, इस वचन के आधार पर उन्हें अप्राकृतिक गुणों को और कृपाओं को परमेश्वर ने दी है कि उसमें लाभ लाए और वो पैसा खर्चे उस व्यापार में। Now, I always give this suggestion to married couples in regards to finances. I always tell them this basic steps. और मैं पारिवारिक जीवन बिताने वाले पति पत्नियों से अधिकता से समय में इस गुणों को या फिर टिप्पणियों को देता हूं उनको। The first thing I tell them is that they need to be able to survive only in the income of the husband. उनको मैं ये टिप्पणी देता हूं कि उनको सिर्फ अपना जीवन और खर्चा सिर्फ अपने पति की आमदनी पर बिताना है। Because this is what will keep you humble. और इस चीजों को आपको दीन रखेगा। You don't have to have a 4-bedroom house. You can live in a 2-bedroom house. आपको 4 कमरों का घर की जरूरत नहीं है, 2 कमरे के घर पे आप रह सकते हैं। You have to live in the budget that the husband is able to provide. और आपके महीने का खर्चा जितने आपके पति की आमदनी हो उसमें खर्चाना है आपको। Then if the woman is working or investing in business, यदि पत्नी काम कर रही है या फिर स्त्री काम कर रही है या फिर व्यापार में पैसा लगा रही है, then this should be an investment for the future. तो ये वो पैसा भविष्य के लिए उपयोग में लाने के लिए हमें खर्चाना है। It is the money you can go on holiday with. और उस पैसे से शायद आप छुट्टियों पे जा सकते हो। It is the money you can keep for emergency. या फिर जरूरी समय पर उपयोग में ला सकते हो। It is the money you can use to support ministries or to send to your parents or other family members. या फिर ये पैसा आप सेवकाई में लगा सकते हो या फिर माता पिताओं को उनको पैसा भेज सकते हो। But I'm seeing here that this money she makes is actually given, God is giving it to her so she can invest in business and profit the family. और ये पैसा वो व्यापार में लगाती है और उसमें से लाभ उठाती है और अपने परिवार के भविष्य के लिए या फिर बच्चों के भविष्य के लिए उसमें उपयोग में ला सकती है। Because I guarantee you that if you cannot survive only on the income of the husband, you will also not survive in both incomes together when you're using for everything. यदि सिर्फ एक व्यक्ति की आमदनी या फिर पति की आमदनी पे आप खर्चे को सीमित नहीं कर सकते, तो मैं वायदे के साथ कह सकता हूं 2 व्यक्तियों के आमदनियों में आप खर्चे को सीमित नहीं कर पाओ। Because we're living in a culture where everything has to be bigger and brighter and more expensive and everything has to be to show off. हम उस संप्रदाय में समाज में रह रहे हैं जो चीजें बड़ी होनी चाहिए, लोगों को प्रसन्नित होनी चाहिए और आकर्षित होनी चाहिए और दूसरों से भी अधिक गंभीर होनी चाहिए। So let's go to verse, we were reading verse 8. Let's go to verse 18. और 18वां वाक्य में हम जाएंगे। It says, she is confident that her profits are sufficient. Her lamp does not go out at night. वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। So basically here God is saying that the woman is able to recognize
a good deal and she knows that she will make enough money for everything she needs. सरल शब्दों में ये ऐसा कहते हैं कि एक अच्छा व्यापार जो खराब नहीं जाएगा और जो भी वो खर्चा करती है उसमें से लाभ उठाती है. And it says that she does not let the light go out at night. In other words, she stays up late if she has to, in order to make sure that she gets the work done. और दूसरे शब्दों में रात को उसका दिया बुझने नहीं देती, मतलब उसका मतलब वो रात को रात तक काम करती है और मेहनत करती है. Then verse 24, she designs and sells linen garments, supplying accessories to clothiers. और 24वां वाक्य, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है. Means you have, as a woman, you have a creative mind, means you can create with your hands and make money out of it. का मतलब एक अलग बुद्धि और सोच दिया है और उसके हाथों में वो कार्य प्राप्ति लाकर उसमें से व्यापार कर कर लाभ बनाती है. Means you can have a side business in your own house. मतलब अपने खुद के घराने में एक दूसरा छोटा सा आमदनी खड़ा कर सकती है. And you can help out with the extra expenses that come up once in a while. और जो भी अधिक खर्चा आता है कभी कभार उसमें से पैसा वो निकाल सकती है. And in other words, you're not 100% dependent on your hubby. उसका मतलब 100% तुम तुम्हारे पति पर निर्भर नहीं. See, the woman has these qualities, and now I'm asking you, why are you not doing this? देखिए, स्त्रियों के पास ये सब गुण हैं. तो मेरा अगला सवाल है कि आप ये क्यों नहीं करते आ रहे? God has given you as a woman the ability to see a need in your community and how to fulfill that need and make money out of it. परमेश्वर ने स्त्रियों को ये गुण दिया है और समाज में उसकी जरूरत है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप उसमें कार्य क्यों नहीं बटाते, ये मेरा सवाल है. You know, we have this elderly lady in our local church over here, and she's always having problems with her phone. हमारे पास एक वृद्ध माता है यहाँ पर हमारे लोकल कलीसिया में और उनको हमेशा अपने फोन के साथ समस्या है. She has a very nice smartphone, and she's always clicking on things, and things are getting downloaded, and the phone is always getting spoiled. और उनके पास एक अच्छा स्मार्टफोन है आधुनिकता का और हमेशा कुछ ना कुछ वो बटन प्रेस करती है और कुछ ना कुछ डाउनलोड होता है और उसके द्वारा उनको कुछ अधिक समस्याएं होती है. But there is a lady who has a small little shop next to where she stays, and whenever she has a problem, she goes to her, and the lady fixes her phone. और उनके घराने के पास ही एक दूसरी बहन या फिर स्त्री का दुकान है छोटा फोन का. जब कभी उन्हें समस्या आता है वह वहां जाती है, अपने फोन को ठीक करवाती है. And yesterday she called us and she said that the phone was not working again. She had to go to this lady's shop, and the lady sat there for 1 hour erasing apps and erasing messages. और उनको फिर से फोन में समस्या हुई. वो फिर से उस दूसरे बहन के दुकान में गई. 1 घंटा तो सभी ऐप को निकालते हुए, मैसेज को निकालते हुए उनका समय बीत गया. She had messages for the past 4 years stuck in her phone. और पिछले 4 सालों का मैसेज उनके फोन में था. So after this, the lady charged her 20 euros. और ये सब होने के बाद 20 यूरो उन्हें चार्ज किया गया. So this is something you can do. और ये कुछ ऐसा है जो आप भी कर सकते हैं. You can help people with their phones and charge your time for helping them. आप लोगों को फोन के माध्यम से दृष्टांत के तौर पर मदद कर सकते हो और उसका आप समय का आप पैसा उन्हें चार्ज कर सकते हो. Now you charge accordingly. Yes, you can do it out of love and out of service to the community, but this is an example of a need in your community where I know there are many elderly people who need help with their phones, and you can help them and charge them something. हाँ, हम एक सेवा के तौर पे भी करते हैं, लेकिन हम इस समाज में हैं
जो जरूरतमंद को सहाय देकर हम उससे छोटा सा मूल्य उनमें से प्राप्त कर सकते हैं। God has given this gift to women. परमेश्वर ने इस गुणों को स्त्रियों को दी है। You can see in your community, in your neighborhood, in your school, what need is there, and you can fulfill that need. आप अपने समाज में, आपके आस पड़ोस में जरूरतों को समझकर सहायता मदद दे सकते हो और उसमें से आप लाभ भी उठा सकते हो। You can, maybe you're taking the children to school and back. शायद आप बच्चों को स्कूल में लेकर जाकर आकर छोड़ते होंगे। Maybe you can take the children of the neighbors to different activities after school. आप आस पड़ोस के बच्चों को कुछ और सामूहिक तौर पर खेल में उनका समय आप खर्चा सकते हो उन्हें लेकर जाकर। Maybe you can provide lunch to people once in a while in their homes. Tiffin. और शायद टिफिन दे सकते हो भोजन के लिए कभी आपके आस पड़ोस में या फिर जरूरतमंद को। There are many people who will need some kind of help, and the women have been given the ability to create and to fulfill needs around them. हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई समाज में जरूरत है। स्त्रियों को परमेश्वर ने उस गुण को दिया है जहां वो सोचकर अपनी बुद्धि को लगाकर उसमें से लाभ उठाकर मदद भी कर सकते। And until you don't believe this, what God has spoken in these verses, you will still sit in your house bored and crying about your life. जब तक आप अपने बुद्धि को और कार्य प्राप्ति को उसकी उत्पन्नता में नहीं लाओगे, आप घर पर बैठकर रोकर अपने दिन और समय को खर्चाते रहोगे। So I encourage you with these verses because I want the women to start to to live the life that God has spoken for them. इसके लिए मैं बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने कार्य प्राप्ति, क्षमता और बुद्धि को उपयोग में लाए और परमेश्वर के उद्देश्य को इस वचन के आधार पर मैं आप सबको प्रोत्साहित कर रहा हूं। Don't be scared of failure. हारने से ना डरिए। God has said you have the ability to do it right. वचन और परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास उस गुणों का सामर्थ्य है सही चीजों को करने के लिए। And if you're afraid of your husband and what he will say, यदि आपको डर लगता है कि आपका पति क्या कहेगा, don't worry, God knows how to shut your husband up. तो परमेश्वर जानता है कैसे आपके पति के मुंह को बंद रखे। And husbands, you have to believe what God has spoken about your wife regarding these things. और पतियों को अपने पत्नी की ओर से परमेश्वर ऐसे वाणियां कह रहा है, इस पर आपको विश्वास और अपने पत्नियों पर भरोसा रखना है। The more you believe in what God says about her, और जितना आप अपने पति पर विश्वास करोगे कि वो क्या कह रहा है, the more the husband believes in what God has said about his wife, और जितना पति विश्वास करता है कि परमेश्वर क्या उसकी पत्नी के बारे में कहता है, the more he will be able to trust what his wife is doing. और इतना वो अधिक भरोसा कर पाएगा कि क्या उसकी पत्नी कर रही है। And the more he encourages his wife, the more she will succeed. और जितना अधिक पति पत्नी को बढ़ोतरी देगी, उतना अधिक वो अपने क्षेत्र में अपने गुणदारी और सफल बनते जाएगी। You see, the day your wife stops fearing you and starts fearing God, she will start to succeed. आमीन। जिस दिन तुम्हारी पत्नी तुमसे कम डर कर परमेश्वर से अधिक भय रखोगी, उस दिन से उनका जीवन और आपका जीवन सफल हो जाएगा। And I love this verse in this what we read in the beginning, verse 11 is still becoming one of those verses that is key to this whole chapter. और मैं ये वाक्य मुझे बहुत पसंद है, उसकी शुरुआत के जो 11वां वाक्य हमने पढ़ा और इस पूरे सिखाने का मूल्य वाक्य बनता जा रहा है।
He says her husband has full confidence in her, and as a result, this is very important, as a result, he lacks nothing of value. उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसके आधार पर और उसे लाभ की घटी नहीं होती. This is such a key verse that I've enjoyed, and I've seen the secret to my success, okay, in life is that I have full confidence in everything my wife is doing. ये वाक्य मैं इतना आनंद लेता हूं और मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे सफलता का रहस्य मैं अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास रखता हूं कि जो भी वो करती है सही करती है. Now, if you're a man, you know this is very hard to do. यदि आप एक पुरुष हो तो आपको ये बहुत कठिन और कठोर होगा करने के लिए. Because we love to have confidence in ourselves. क्योंकि हम पतियों को या फिर पुरुषों को हमारे ऊपर विश्वास करना हमें अधिक अच्छा लगता है. And we always think that women are not as qualified as we are. और हमें ऐसा लगता है कि स्त्रियां उतने गुणदारी या फिर पड़े हुए नहीं है लौकिक चीजों में जितना हम हैं. And when you realize what the Word of God says, you will realize that it is completely opposite. They are more qualified than we are. और जब हम आत्मिक दृष्टिकोण से और इस वचन के आधार पर हम देखोगे, हम निराशित हो जाएंगे ये जानकर कि हमसे अधिक गुणदायक है वो इस क्षेत्रों में. So I want to encourage you with this, and this is God's word, and this is what works in our lives. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और ये परमेश्वर का जीवित वचन है और ये सच ही कहता है और ये हमारे जीवन के लिए लाभ और अच्छे के लिए है. And that is why we encourage everyone who is struggling in their marriage, if you need help, you need to come to the Word of God and change things around in your life. इसके लिए मैं उन सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं. ये परमेश्वर का जीवित वचन है और इस वचन के आधार पर अपने जीवन को बिताए और वचन की ओर लौट कर आए. Now, many of these qualities are natural in women without God actually being part of their lives. ये सभी गुण हमारे जीवन में तभी प्राप्त और परिपूर्ण होंगे जब यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होगा. Now, sometimes these gifts in women work even if they are not in Jesus Christ. ये गुणें स्त्रियों के जीवन में तभी भी काम करेगी जबकि वो मसीह में नहीं है तभी. But the end thereof will be destruction. लेकिन उनका अंत नाश में होगा. Because the source or the beginning of using these qualities is for their own gain and their own prosperity. क्योंकि उस जो भी गुण हैं अंत में वो उनके लाभ के लिए, उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए और व्यक्तिगत इच्छाओं अभिलाषाओं के लिए होगा. And we have seen in the world how many women who, because they have these qualities, what they end up doing is they end up oppressing the husbands. और ये गुणे होने वाली स्त्रियां जो विश्वास में नहीं है अंत में अपने पति को दबाव में लाकर उनके ऊपर दबोचेगी वो. So we have to be careful how we use these gifts and to make sure that they are birthed from a place that is to bring glory to God. और हमें इसलिए ध्यान देना है कि एक भार या फिर बोझ ना बने, ना कि आत्मिक तौर पर कैसे ये उन्नति के लिए, एक दूसरे के लिए, घराने के लिए और व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर की महिमा के लिए की जा सके. So if you want things to work out in your life, you have to come to the Word of God. इसके लिए यदि आपके जीवन में कार्य होना है तो आपको परमेश्वर के वचन पर नींव डालना है. We are here to help you. We are a church online. Many people are joining with us and they're finding answers to their problems. हम यहाँ ऑनलाइन कलीसिया है. बहुतों को सवालों के जवाब को हम दे पाते हैं वचन में और मसीह में. हम हैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए. God is calling you today as well to come and receive what He has prepared for you. परमेश्वर आपको नियोता दे रहा है. आइए, परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है उसे प्राप्त कीजिए. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे.